Hello everyone, how are you? I hope you are doing good. So today our video is regarding about grade A previous year analysis of descriptive questions. Plus we will be discussing what are the most important, or you can say the repeated also, and then what are the most important themes that is relevant for NABARD grade A 2026 descriptive, and that is based on the analysis of the previous year questions obviously, and what has the more probability to be asked. तो यस ये हमारा कंटेंट रहने वाला है. हम PYQs डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2020. ठीक है, फ्रॉम 2023 हाँ 2023, 2024 एंड 2025 एंड विल ट्राई टू एनालाइज इट. प्लस हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, 23 से लेकर 2026 को. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वो कर लिया है इट इज मोर देन इनफ. पूछना मत मैम इतना काफी है क्या, पहले आप उतना करो फिर पूछना, क्योंकि वो करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. So this is a previous year question for the year 2025. ठीक है, चलिए. So they asked about the challenges in poultry and dairy farming. I can relate it to what? Livestock. राइट, एक इसका मेजर जो थीम बन के आएगा दैट इज लाइफ स्टॉक एंड एग्जामिन देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रोल इन एग्रीकल्चर. सो द इसका मतलब क्या हुआ, टू पार्ट्स में आपका क्वेश्चन डिवाइड हो गया. फर्स्ट वी हैव टू टेल द इंपॉर्टेंस, सॉरी चैलेंजेस पूछा है. हाँ, द चैलेंजेस है कि क्यों हम इसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर. एज यू ऑल्सो नो, अगर आपको नहीं पता है, अशोक दलवाई कमिटी recommendations के अनुसार, देखिए, they said that if you add livestock to the agriculture, the incomes, it will be very easy to double the farmers income, जो कि हमारा target है. ठीक है, so this was a compulsory question. Then in the context of recent incidents in import tariffs, discuss their benefits and the challenges for the Indian economy and suggest a way forward. That means why? Because of the various crises that were happening, right? Maybe this thing, the wars or the Middle East crisis, the import tariffs जो भी है that have been जो भी उसके increase हुए हैं, discuss there what are the challenges, means अब उसके challenges क्या होंगे with the Indian economy, right? मतलब what will be the impact on the manufacturing industries and the services industries and suggest what will be the way forward. और way forward में आप वो सब भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या measures लेती है from time to time. For example, गवर्नमेंट reduce कर देती है import tariffs, या कई बार क्या करती है for the small manufacturing industries raw materials अगर वो मंगवाती है तो उसके क्या करती है, the tariffs reduce, they reduce the tariffs. Discuss the role of institutional funding by global institutions such as the World Bank and IMF in promoting sustainable growth and structural reforms in India. So basically that they are talking about कि World Bank and IMF जो है कैसे काम करते हैं when it comes to the growth and structural reforms and how it is impacting in India. ठीक है, मुझे एक बात याद आ गई. ठीक है, वो मुझे एक बार बताने चाहिए था. ठीक है, so in the descriptive, okay, in the descriptive there you have to attempt 4 questions, right? Out of that 2 questions is 15 marker, approximately 600 words का ये आता है, right? 600 words and 2 questions, right? 2 questions are of 10 marks and ये आते हैं आपके 400 words में you have to complete it. Now ये जो 2 questions you have to attempt it, out of that they give you 3 questions. Basically they give you 3 questions in which 1 question is compulsory and out of that 2 questions you have to attempt 1, right? तो टोटल कितने हो गए 2. Similarly यहाँ पे भी आपको 3 questions दिए जाएंगे in which 1 questions would be compulsory, you have to attempt it, right? And 2 questions और दिए जाएंगे out of which you have to attempt 1, so that is your choice. So total becomes 4 questions, right? तो इसीलिए the pattern was this way कि ये वाला compulsory था and out of these 2 you had to do 1. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं that this deals with the ARD section, that is agriculture and rural development, and these 2 questions dealt with economic and social issues वाला, है ना, ESI वाला section. Okay, now let's come to the 10 marker. Discuss the challenges and it is a compulsory question that deals with the migration. आप ये एक pattern notice करना, जो compulsory question होगा हमेशा one would be of agriculture, जैसे for example उसमें livestock था, and one would be of what? Economic and social issues. जैसे ये compulsory question हो गया. Migration हमेशा एक theme रहती है. What are the majors? कि भाई देखो labor migration है, कहीं पर भी जाते हैं, there is a lot of employment issues हो जाते हैं, and then there's the infrastructural issues, then population increases, when population increases they migrate, then rural areas में क्या impact पड़ता है, ये तो आपके क्या हो गई this. And what government is doing, for example what government is doing, they are providing this thing Shram portal, or they're trying to organize it, they're providing PM Awas Yojana to improve the employment. They are what are they doing? They are providing what? Employment opportunities, their employment skills, all of that. I'm just telling the context कि क्या इसमें बताना रहता होगा. Then digital agriculture mission, agriculture से related है ये भी, and ये भी agriculture से related है. Now आप यहाँ पे notice करना कि out of these 4 questions, 2
ठीक है, 2 आपके ESI के होते हैं एंड 2 आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, राइट? Now in this you have to attempt one, whether you have to attempt what do you mean by a dam and what is the crop diversification benefits, what would be the benefits for these farmers. ठीक है, then this is 2024. This is 2024. How can post harvest technology, right, value addition, supply chain management contribute to the growth of horticulture crops? So it is definitely dealing with horticulture crops. अगर आपने ये पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये पोस्ट हार्वेस्ट, देन यू हैव टू रिलेट इन द एग्जामिनेशन होल फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. सपोज मैं पढ़ के गई थी, वन सेकेंड, सपोज मैं पढ़ के गई थी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सॉरी एग्रीकल्चर से कितना रेलेवेंट है आपके पोस्ट हार्वेस्ट का, बस आपको वहां पे हॉर्टिकल्चर से रिलेट कर देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दे रही हूँ, है ना, एक आइडिया दे रही हूँ कि आप पोस्ट हाउस टेक्नोलॉजी बनाओगे. लेट्स से यू विल मेक वेयर हाउसेस, यू विल मेक चिलिंग फैसिलिटीज, देन दिस थिंग याद नहीं आ रहा अभी, हाँ, तो पोस्ट हाउस में आपका लॉजिस्टिक्स भी आ जाता है, राइट? पोस्ट हाउस में गुड आपके चिलिंग जो वेयर हाउसेस भी आ जाते हैं. देन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में क्या आ गया आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट? एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट मीन्स वेयर see, what do you mean by post-harvest and supply chain management? That includes all the forward linkages of the agriculture, right from the harvest to the consumer plates, right from the harvest of the produce to the consumer plates, everything includes post-harvest. Be it your transportation, यानी कि infrastructure challenges like this thing, transportation, right? Like for example logistics, then for example warehouses, then पहले वेयर हाउस में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में जाएगा. थिंक दैट वे. देन फॉर एग्जाम्पल then providing what farmers margin, that is a kind of also कि भाई फार्मर्स को कम मार्जिन मिलता है. देन फूड वेस्टेजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, वी हैव टू वैल्यू एडिट, वैल्यू एड करना पड़ेगा किसमें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में. सो दैट मीन्स बूस्टिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सो दैट यू एड वैल्यू टू द फूड प्रोडक्ट्स टू अवॉइड द फूड वेस्टेजेस, दैट इज to avoid the post-harvest losses. You must be aware that India has approximately 25 to 30% of the post-harvest losses in agriculture and our target is to reduce by to 10%. Just जो भी याद आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है. Then examine the institutional framework for rural credit in India. यहाँ से बहुत बार 3 या 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है in the last 5 years. फॉर्म बदल जाएगा. For example, they may ask agriculture credit, they may ask rural credit, they may ask what are the various institutional and non-institutional sources of credit. Institutional sources of credit like banks, like financial institutions, like cooperatives, ठीक है. Non-institutional like money lenders, right, which is not, we can say not formal in nature, like money lenders, relatives. Then उससे कोई dynamic version add कर देंगे कि what is impacting, then you must have the data also कि आपका जो ये डेटा है पहले क्या था और अभी क्या था. 60% आपका institutional sources है, 40% आपका non institutional है. Why it is that the farmers are still relying on non institutional? What are the government schemes to improve the institutional sources? For example, then PM Jan Dhan Yojana, ठीक है, लीड बैंक स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम. देन भाई ये आपको बताना पड़ेगा द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड व्हाट मोर कैन बी डन टू इंप्रूव व्हाट फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट. तो मैं आपको एक आइडिया भी दे रही हूँ कि इस आंसर में, इस क्वेश्चन में एक आंसर क्या हो सकता है. ठीक है, पढ़ने को तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के भी जा सकती थी, बट नो, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट होलिस्टिक आइडिया. एग्जामिन द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट ड्रॉव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. पिछले 5 years में आई थिंक ये 2 to 3 times पूछा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रॉम 2014 to 2024. दे कैन आस्क यू नॉर्मली व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट यहाँ पे इन्होंने अलग से पूछ लिया कि फ्रॉम 2014 to 2024. व्हाई 2014? जनधन योजना, राइट, is a part of financial inclusion. Why 2014? Again, 2015 में there were 3 योजनास. One was अटल पेंशन योजना, there was जननी सुरक्षा योजना, सॉरी जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना, राइट. सो जितने भी सारे मेजर्स लिए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वी हैव टू टेल, बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स पूछा है जो 14 से 24 है. ऑब्वियसली यू हैव टू टेल द डेफिनेशन. और एक चीज़ और मुझे बतानी थी, जनरली लोगों को लगता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इज समथिंग रिलेटेड टू बैंक्स. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी फार डायनेमिक्स, आई टेल यू. ठीक है, बस मुझे ये एक 30 seconds लगेंगे इसको बताने में. सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज फार this. It is not only about banks plus savings. It is not only about bank savings or lending. Generally हम ये समझते हैं banks में savings कर ली, lendings कर ली, accounts हो गया, that is financial inclusion. No. Financial inclusion also includes the insurance penetration of India. That means how many people are insured. It also includes pension penetration.
right? For that reason, we have Shram Dhan for the unorganized workers. We have Kisan Man Dhan for farmers. Then we have saving schemes for whom? Like NPS, right? और इसमें savings तो चलो saving schemes तो इसमें आ जाएगा, right? And then for insurance we have Jeevan Jyoti Bima Yojana, we have Suraksha Bima Yojana, that is financial inclusion. Now nowadays the pillar of financial inclusion also includes digital inclusion, right? ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, दे थिंक अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट्स, बट जब आप पढ़ाई करोगे या मैंने जब पढ़ाई की थी तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डिजिटल इंक्लूजन, दैट नाउअडेज फाइनेंशियल इंक्लूजन आल्सो इंक्लूड्स द डिजिटल इंक्लूजन. फिर इस डिजिटल इंक्लूजन में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स. व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टफ जो कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल यूपीआई, है ना? यूपीआई इज पार्ट ऑफ इट. या फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इंक्लूजन करने के लिए फार्मर्स एग्रीकल्चर स्टैक, ये भी तो हो रहा है. so many schemes जब आप automatically पढ़ोगे, you will be able to relate to it. आपको purposely नहीं याद करना है. Whenever you will be reading those schemes, you will be able to interconnect. You will be, आपका thinking इतना ज़्यादा develop हो जाएगा कि आपको purposely नहीं learn करना है ये, आप automatically आप इसको connect कर पाएंगे. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन. दे कैन आस्क विद रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑल्सो, जो कि आरबीआई रिलीज करता है, ठीक है, कि भाई बताइए क्या है. देन कई बार ये लोग स्कीम्स भी पूछ लेते हैं, राइट? दैट इज, इन्होंने स्पेसिफिकली पीएम विश्वकर्मा स्कीम पूछ ली थी एज स्वामित्व स्कीम, तो ये 5 मार्क की ये हो गई 5. अब देखो ये क्यों पूछी थी? बिकॉज दैट वाज इन द न्यूज. उस वक्त विश्वकर्मा स्कीम जो है वो न्यूज में थी, 2023 में लॉन्च हुई थी और 2024 का एग्जाम था, तो उन्होंने ये पूछ ली. यानी कि आपको बाय हार्ट याद होगा तभी तो आप ये लिख पाएंगे. Then, significance of storage systems of agriculture, that means food storages. Somewhere it is also related to what? Post harvest. कि अगर आपका food अच्छे से store नहीं होगा, so what will happen? ठीक है, it will get ruined and food security. Or I would say, ठीक है, it is related to your public distribution system, it is related to your food security, and it is also related to the post harvest losses. ये तीनों चीज आपको interconnect करना था, and then you had to answer it, right? The post harvest losses होगा, you will make an infrastructure for it. For example, what? Warehouses. If you want that the storage systems would be better, for that you need to have a timely transportation, right? Timely transportation and logistics infrastructure. तो ये point यहाँ से हो गया. इसमें हमें ये सब बताना होता है कि for example, है ना, जितना मुझे फैक्ट याद आ रहा है एज पर नीति आयोग, some lakh tons, I think it was 90,000 lakh tons or something, 90,000 lakh tons of food is wasted in India every year. Why? Because food is not stored properly. Otherwise they get spoiled by rain, or they are a pest attack, they are disease. ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती हैं. And even in fact there are some leakages, there are some corruptions. For in that also food storage happens. So we have to interconnect all these points. And then also you have to tell कि क्यों इतना significant है. We have to tell the challenges and obviously to save the food from the losses. That is the importance of it. Correct? Then short note on dryland farming. Dryland farming आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे पानी की कमी होती है, that is the dryland farming. So you have to tell that why it is important, where it can be practiced, right? And what kind of crops you can practice. For example, millets. For example, pulses. ठीक है? मुझे पता है थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सी इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट टू रीड, राइट? द वीडियो इज नॉट अबाउट टेलिंग यू द PYQs, वो आप खुद भी कर सकते हैं. द वीडियो इज अबाउट टू एनालाइज इट, दैट हाउ योर ब्रेन शैल वर्क वेन एवर यू आर रीडिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू इट, राइट? अगर आप इतने समझदार हो तो बहुत अच्छी बात है. समझदार तो देखो सारे ही हैं, बट समटाइम्स योर फैकल्टीज आर देयर टू हेल्प यू आउट, करेक्ट? देन दिस इज द एक्सटेंशन एजुकेशन जो आप पढ़ेंगे. एक स्टैटिक चैप्टर है वहाँ पे, और तो एक मतलब दिस वाज अ शॉक फॉर मी, इट वाज अ शॉक व्हेन आई वाज राइटिंग, बट पढ़ाई इतनी कर ली थी कि आई वाज एबल टू राइट इट अ वेरी गुड आंसर टू इट. दैट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट? वेरियस मेथड्स होते हैं इसमें जो बताने थे इनको, तो उन्होंने अपने आप बता दिया था कि देखो इफ यू टेल दिस इज ऑफ 6 मार्क्स एंड इट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी कंपल्सरी क्वेश्चन. डिस्कस द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर. सो फर्स्ट यू हैव टू टेल द मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल मेथड डेमोन्स्ट्रेशंस, उसमें आपको बाइफिकेशन करना होता है बाय द न्यूज़पेपर्स, टीवी, मीडिया. देन यू जैसे फार्मर को फोन कॉल्स करते हैं, कृषि विकास केंद्र, एंड देन इसमें एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प होगी. पढ़ाई का उसमें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. एग्रो फॉरेस्ट्री, आई कैन नॉट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री इन्होंने, ठीक है, लगातार 2 years में पूछ लिया था. यानी कि एक सोशल फॉरेस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है द कॉन्टिन्यूसली इन द सेम 2 years, राइट? 2 years में लगातार उन्होंने पूछ लिया था व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री. एंड देन यहाँ पे देखो इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री पूछ लिया इन द 2023. सो जहाँ तक हम आई एम अज्यूमिंग इट इन द ईयर 2020
2022 एंड 2021 सोशल फॉरेस्ट्री पूछा था, 2023 में इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री पूछ लिया, है ना। दैट मीन्स व्हेन यू आर कंबाइनिंग व्हाट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ इट एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स, कि क्या बेनिफिट होगा इससे, बट व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स टू इट, व्हाई वी आर नॉट एबल टू अडॉप्ट इट। इसका मतलब क्या हुआ, दैट फॉरेस्ट्री चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, बी इट सोशल फॉरेस्ट्री, बी इट एग्रो फॉरेस्ट्री, बी इट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री लाइक अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, बहुत सारे इश्यूज हैं, डिटेल में कभी करवाएंगे। देन द सोर्सेज ऑफ, सी आई टोल्ड यू ना दैट टाइप्स ऑफ क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के फॉर्म में ये पूछते हैं। तो आप देखेंगे, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, द सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इंक्रीज्ड, स्टिल मेनी फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स, दैट मीन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट। सो वी हैव टू टेल द डेटा, एक डेटा जरूर होगा ना, होना चाहिए आपके पास कि देखो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इतना है, देन वी हैव टू टेल यस दिस इज ट्रू, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड स्टिल व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स, देन we can tell okay farmers are not getting accessible, they do not have what, why there is an issue, right, there is a lack of collateral to the farmers, then there is lack of education, they are not aware of it, correct. Or you can say mostly farmers are small and marginal farmers, they do not have lands to put it at as what, collateral. Then examine the significant demographic shifts in India since independence. That means they are talking about कि while independence, it was a little tough question because देखो अगर ये पूछ लेते ना significant demographic shifts तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे इन्होंने एक टाइमलाइन जब सेट कर देते ना, जैसे वहां पे एक टाइमलाइन सेट कर दी थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या मेथड्स है फ्रॉम 2014 टू 2024, देन यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ इन दिस टाइमलाइन एंड यू हैव टू टेल सर्टेन एरियाज दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट्स इन्होंने पूछ लिया सिंस इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स हाउ योर पॉपुलेशन, है ना, एंड डेमोग्राफी is changing, right, and how much demographic dividend is there, how much youth is there and how you can tap the potential of that youth, correct. अब देखिए यहाँ पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछ लिया इन्होंने, डिस्कस द इंपॉर्टेंस इम्पैक्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैं एक चीज यहाँ पे देखना भूल गई कि देखो ये वाला क्वेश्चन जो है कंपल्सरी है, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, एग्रीकल्चर। Then institutional credit, this is a part of, you can say, agriculture also, part of economic also. Then this, out of this, question number 2 and 3, you have to perform one, agroforestry or agriculture marketing. And here also financial inclusion and democratic shifts, you have to perform one. अब यहाँ पे नोटिस करो कि दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी, है ना। तो यहाँ पे एक इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, दिस इज एग्रीकल्चर, दिस इज एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो एग्रीकल्चर, ठीक है। सिमिलरली हेयर, right, similarly here. अब I will show you the themes, वो तो चलो 2 मिनट का काम है, the most important themes that have been repeatedly asked. These are the top 20 themes. ये trust me, you can trust these themes, these are very important. इसमें एक चीज मैं ऐड करना भूल गई जो अभी मुझे याद आया, but when the PDF will be provided, I'll add that. So, agriculture debt, which means what? एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो कि अभी आपने देखा भी है, 3 साल में 2 बार पूछा है। देन इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, इन्होंने 2021 में या 2 में देयर आस्क्ड ड्रिप इरिगेशन, सिंपल पूछ लिया था व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन एंड हाउ इट कैन हेल्प, यानी कि माइक्रो इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट। ड्राई लैंड फार्मिंग, ये भी पूछा हुआ है। इंटीग्रेटेड अभी किया था ना ड्राई लैंड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड वाटरशेड्स मैनेजमेंट, दैट मीन्स व्हाई डू यू नीड a watersheds management. See, in the areas of dry areas where there is lesser irrigation, where the the agriculture is dependent on what? Rain. So there you need to make watersheds to save the water and to supply the water in the form wherever it is needed. तो ये आपका irrigation से related हो गया, right? Then agriculture marketing, ठीक है? They can ask you directly ENAM, MSP, agriculture subsidies. For example, why agriculture subsidies are not performing well, or what are the loopholes in the agriculture subsidies, or what are the challenges in the system of agriculture subsidies, है ना? Crop diversification, integrated farming system, which is little bit same but थोड़ा सा difference होता है. When we say crop diversification, right, it is only talking about crops. You diversify the crops, ठीक है? For example, you do multiple cropping. But integrated farming system is altogether different thing, where you do crops, you do forestry, you do livestock, तीनों चीजें. तो ये मैंने एक साथ डाल दिया. Then livestock का question you have seen in 2025. Agriculture technology, that is digital agriculture mission, है ना? Agriculture stack, अब digital agriculture mission में agriculture stack is a part of it. Technologies in agriculture,
जो भी गवर्नमेंट लेके आती है, देन डैम एंड एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन. व्हाट एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंक्लूड्स? एनीथिंग. फॉर एग्जांपल फार्म मैकेनाइजेशन. ठीक है, नंबर 1 फार्म मैकेनाइजेशन, लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. देन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल यू ब्रिंग बायोटेक्नोलॉजी टू इट. दिस इज अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. देन प्रिसिजन फार्मिंग हो गया आपका, लेट्स से, right? Precision farming, all of that are part of agriculture technologies. Then post harvest बता दिया आपको. Post harvest losses, food wastages पूछा गया है, फूड स्टोरेजेस भी पूछा गया है. एक ही बात है, फूड वेस्टेजेस, फूड स्टोरेजेस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. अब देखो जैसे आप बताओगे तो इसमें क्या बताओगे? पीएम किसान संपदा योजना, फूड सिक्योरिटी भी पूछा गया है ना, एंड पीडीएस. देखो इस पे 2020 2 में एक क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पीडीएस एंड हाउ इंडिया इज अप्लाइंग दिस पीडीएस. तो बहुत डिटेल में इसको करना था आपको कि व्हाट इज पीडीएस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड. फूड सिक्योरिटी वाला तो अभी आपने देखा ही होगा, ऊपर पूछा था. देन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, organic farming and zero budget natural farming, right? So this is the agriculture relevant. This is agriculture relevant जो सिर्फ agriculture areas को cater करते हैं. इसमें सब कुछ आपका आ जाता है. ठीक है. Then there can be agriculture static, right? ये एक बार उन्होंने पूछ लिया था in the year 2021. एंड ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था उस वक्त, बिकॉज नो वन प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड बहुत टफ था सबके लिए. एनिमल ब्रीडिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग हम पढ़ते हैं, बट इस तरीके से नहीं पढ़ते कि हम उसको लिख पाए, एंड इसकी वर्डिंग्स भी बहुत टफ होती है क्रॉस ब्रीडिंग की. ठीक है, तो ये स्टैटिक हो गया. सोयल इरोजन एंड सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स, दे कैन आस्क यू व्हाट आर द वेरियस सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट द सोयल फ्रॉम इरोजन. फॉरेस्ट्री, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. सोशल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री, रूरल, अर्बन, कम्युनिटी फॉरेस्ट. नाउ दीज आर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. Economics concept, static versus, not versus, static and dynamic both. Financial inclusion and inclusive growth, 2 या 3 बार पूछा है इन्होंने. 2 बार financial inclusion पूछ लिया and एक बार inclusive growth पूछ लिया. Question was that how inclusive growth, and they have connected it to social infrastructure. That is, if you invest in social infrastructure, how it will lead to inclusive growth. You also know that you put your investments, you put your energies in health, women, education, all of that is social infrastructure. It will help in what? Inclusive growth, which include women, which include SCs, which include poor, STs, tribals. Then international institutions, यहाँ से एक क्वेश्चन अब जो है पक्के से पक्के आ रहा है. एक बार उन्होंने पूछ लिया था व्हाट आर द वेरियस एग्रीमेंट्स ऑफ WTO. देन बैंक और वर्ल्ड बैंक, IMF का तो अभी आपने देखा होगा, 2024 में पूछा है, दैट हाउ दे आर वर्किंग फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसे कुछ था ना. Now, sustainable development growth. Then, globalization का एक क्वेश्चन आया था in the year 2022. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि we have discussed from 3, 4 and 5. ठीक है? They asked about the globalization and liberalization. Then the questions can be of FDI. Migration का पूछा है 24 में and urbanization. Because both are interrelated, right? Because both are interrelated. Migration होगा तभी तो urbanization क्या होता है? Increase होता है. Then unemployment, women empowerment, SMEs and startups. यूथ एम्पावरमेंट, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट? डेमोग्राफिक शिफ्ट्स जो उन्होंने पूछा था. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगी. दे कैन आस्क इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस 1991. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1991, टेक अ गैप ऑफ 10 years एंड यू टेल फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. देन यू टेल कि ओके द फेरा वॉज चेंज टू व्हाट? FEMA. These are all of what? A part of what? The economic reforms taken time to time, or the industrial policies. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स गोल्स, ये थोड़ा बहुत पढ़ जाना. वैसे अभी तक के तो SDGs डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट अब आप देखेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में पूछा था विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू SCs, STs, दैट कैन बी स्कीम्स. अभी मैं जो चीज इसमें ऐड करना भूल गई थी, दैट वाज गवर्नमेंट स्कीम्स. अब देखो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स वो नहीं पूछेंगे. सारी गवर्नमेंट स्कीम्स विल नॉट कम फॉर द डिस्क्रिप्टिव. कभी आप सोचो मुझे हर गवर्नमेंट स्कीम को प्रिपेयर करना है फॉर द डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या पूछा है ऑलरेडी स्कीम्स में. एक तो आपने अभी देखा विश्वकर्मा पूछी गई है एंड स्वनिधि. ठीक है, वाई? बिकॉज इट वॉज ऑन द न्यूज. सो कैन आई से दैट एनीथिंग विच इज मोर रिसेंट, न्यूज बहुत बार रिपीट हुई है PIB में, तो क्या पता वो आपको 5 मार्क्स से पूछ ले. प्रीवियसली उन्होंने 2 स्कीम्स पूछी थी. वन वॉज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट वॉज इन द ईयर 2020. हाँ, 2, दैट वॉज इन द ईयर 2020.
2 एंड इन द सेम ईयर उन्होंने 2 स्कीम्स पूछ ली थी, दैट इज पीएम मत्स्य संपदा योजना कि बता दीजिए व्हाट इज इट एंड व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ इट. इट वाज इन द सेम ईयर. So, can I say that if there is a 10 marker or 50 marker, it will be definitely of Agriculture Ministry or Rural Development. Rural Development की सबसे most important NRLM भी है. It can be repeated, can be asked again. इतना पढ़ाई कर लेते हो, you will be able to write it. Okay? अब देखो एग्रीकल्चर में कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल पीएम कृषि सिंचाई योजना, है ना, पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क, वैसे सोयल हेल्थ कार्ड तो बहुत छोटी सी स्कीम है, आई डोंट थिंक दे कैन आस्क, ठीक है. दिस थिंग NMSA नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, राइट, जिसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया. सो ये मैं आपको चॉक डाउन करके दे दूंगी कौन कौन से स्कीम्स जो है एग्रीकल्चर की और RD की इंपॉर्टेंट है. अभी मुझे ना थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है. जैसे अभी देखो इन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पूछ लिया था, दैट वाज पार्ट ऑफ करंट अफेयर आल्सो एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्कीम आल्सो, है ना. और दे कैन आस्क सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम आल्सो, और दे कैन आस्क अबाउट ईना. सिंपल बोल देंगे 10 मार्कर में ईनम के बारे में बताइए. ये स्कीम भी हो गया एंड अ पार्ट ऑफ डायनेमिक पोर्शन आल्सो. सो सारी स्कीम्स हमें डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयार करनी है, स्पेसिफिकली दैट इज इन न्यूज. फॉर एग्जाम्पल ये, राइट, लेट्स सी VBG राम जी, हमें उस वक्त चेंज हुआ था तो मुझे लगा था VBG राम जी पूछेंगे, बट वे पूछ सकते हैं डायरेक्टली. एंड एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू RD, दैट इज रूरल एंड एग्रीकल्चर. सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. वी हैव डिटेल में हमने डिस्कस किया है RPYQ एनालिसिस, प्लस वी हैड डिस्कस द थीम्स. इसमें स्कीम्स वाला पोर्शन आई विल एड इट, इकोनॉमी पोर्शन, एग्रीकल्चर स्टैटिक पोर्शन एंड एग्रीकल्चर डायनेमिक पोर्शन, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं अगर, या अगर CGB से भी या आपने कहीं से भी जो भी कोर्सेज लिए हैं, उसमें क्या होता है कि थीम बेस्ड और वो कंटेंट थोड़ा सा क्लटर्ड भी हो जाता है. देन यू हैव टू पिन पॉइंट एंड मेक योर कंटेंट crisp and do your preparation in a crisp manner and smart manner. So that's it guys. I hope you liked this session. See you soon. Thank you so much.